ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے اور مسلسل ناکامیوں کا شکار۔ بحرین میں بیرسٹر اسد الدین اویسی کا خطاب۔ بھارت کی مختلف ریاستوں کی مختلف نشستوں پر ضمنی انتخابات کا اعلان۔ الیکشن کمیشن نے جاری کی نوٹس۔ سنجے جھا کی قیادت والی آل انڈیا پارٹی وفد کی سول کوریا میں بھارتی سفیر سے ملاقات۔ پاکستان نہ صرف بھارت بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ ریاست تلنگانہ حج کمیٹی سے آج بھی حجاج کے قافلے روانہ۔ پونم پربھاکر کی شرکت۔ ظہیر آباد میں جلسہ وقت بچاؤ دستور بچاؤ، علماء، سیاسی اور دیگر قائدین نے کی شرکت۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بحرین میں ایک تقریب کے دوران پاکستان کو ناکام قرار دیا۔ بحرین میں موجود بھارتی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ پاکستان نہ صرف داخلی طور پر کمزور ہو چکا ہے بلکہ اس کی معیشت، ریاست اور عالمی سطح پر ساکھ بھی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ایک مضبوط اور جمہوری ملک ہے جبکہ پاکستان اپنے ہی مسائل میں گھیرا ہوا ہے اور مسلسل ناکامیوں کا شکار ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کا یہ بیان بین الاقوامی سطح پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور ان کی صاف گوئی کو کئی حلقوں میں سراہا جا رہا ہے۔ Unfortunately, you're not the first and last one, and because of that concern, our government has sent us over here and the various delegations comprising of all party members of parliament to different parts of the world, so that the world knows the threat which India has been facing from last so many years. And unfortunately, we have lost huge amount of human lives. Innocent people have been killed. And the fact of the matter is that this problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. And India has exercised utmost restraint in dealing with this problem. I don't want to reiterate what the head of my delegation, my honorable good friend Jay Panda has said. But please understand that India has exercised utmost restraint. Even after the Pahalgam attack which took place, in which 26 tourists have lost their lives. And please, understand the enormity of this massacre which took place. A girl which got married 6 days ago, on the 7th day she becomes a widow. A girl which got married 2 months ago, she becomes a widow. India has all the wherewithal, and inshallah we have all the means to ensure the safety of not only the Indians, but anyone who lives in India. Because if you see on the 9th or 10th of May, when Pakistan unleashed whatever it had, no amount of damage happened in the mainland India. Yes, in the Poonch area, we know what has happened. But the air defense system, what has been said by the government in the media is that all our technology, all our warfare was able to stop whatever was thrown from a failed state like Pakistan. You're absolutely right, a bomb blast took place in Rameshwaram. Those culprits have been caught. And let me also remind you that the 26/11 incident which took place in Mumbai, Ajmal Kasab was caught. Ajmal Kasab was given all the due process of the law, wherein Ajmal Kasab went through all the legal process of our country, and ultimately the court gave him the punishment. Even after that,
the Indian investigators gave all the evidences which was required to the Pakistani government. They had given proofs, audio recordings, and can you believe at that time when this 26/11 incident took place, the Pakistan foreign minister was in India. So this is a state which is not at all connected. It is not at all concerned about the safety and what the message that goes out. But unfortunately, because of Pakistan's intransigence, that trial didn't go further up. But when Bahrain was heading the FATF committee and Pakistan was put in the grey list, that trial proceeded. And after that, Pakistan came out of grey list, and unfortunately those people were convicted only in money laundering, not in terrorist charges. And there was a UN designated terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi. I don't know where in the world the prison system is such that Mr. Zakiur Rahman is a designated terrorist, and by being in prison, his wife gives birth to a child. Now this is what Pakistan's legal system or the support of the state is concerned. So I can only assure you with all the responsibility that our government has taken all the steps to protect the life and limb of every Indian, and this government has made very clear. Next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. See, we don't want to reply in that way, but there is a limit to the patience of the Indians. You cannot go on and come into India and kill people. You cannot place bombs. The first terrorist suicide bomb took place in front of Jammu Kashmir Assembly. And you had Uri, Pulwama, and last year in July, terrorists had went and shot these Hindu pilgrims who were going in that particular bus. 7 people were killed. So now I think there is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have our political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. And I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF. Because this money has been used to support those terrorists. And I'm sure our chairman, my friend Jay Panda must have told you that when we had bombed those 9 terrorist sites, especially Bahawalpur of LET, how is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janazah of those people? I mean, there is a limit to this shamelessness. So you can be rest assured, and your family is our family. We understand your concern, but inshallah, hopefully, we will see the end of this menace very soon. इलेक्शन कमीशन ने इतवार को गुजरात के 2 और केरला, पंजाब और मगरबी बंगाल की एक असम्बली सीटों के लिए 19 जून को ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया है। कमीशन की एक रिलीज़ के मुताबिक गुजरात असम्बली का डी दर्जे फहरिस्त ज़ात और वैसावारिद केरला के निमलम्बूर, पंजाब के लुधियाना, मगरबी और मगरबी बंगाल की कालीगंज असम्बली सीट पर ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन पीर 26 मई को जारी किया जाएगा। इन ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागज़ात नामज़दगी 2 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। कागज़ात की नामज़दगी की जांच 3 जून को होगी और 5 जून तक कागज़ात नामज़दगी वापस लिए जा सकते हैं। इन सीटों के लिए वोटिंग 19 जून को होगी और वोटिंग की गिनती 23 जून को कराई जाएगी।
کمیشن نے کہا ہے کہ انعقادی نشستوں پر ضمنی انتخاب کا سارا عمل 25 جون تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ضمنی انتخاب کے اعلان کے ساتھ ہی وہاں پر مثالی ضابطۂ اخلاق نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہ نشستیں منتخب نمائندوں کے انتقال یا استعفے کی وجہ سے خالی ہوئی ہیں۔ سول جنوبی کوریا میں سنجے جھا کی قیادت میں ایک آل پارٹی وفد نے بھارت کے سفیر سے اہم ملاقات کی، جس میں پاکستان سے متعلق متعدد امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اس وفد میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے، جنہوں نے علاقائی سلامتی، دہشت گردی اور پاکستان کی بھارت مخالف پالیسیوں کے تناظر میں اپنے خدشات سے سفیر کو آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران وفد نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے پاکستان پر عالمی دباؤ بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وفد نے اس بات کی نشاندہی کی کہ پاکستان کی سرزمین سے جاری دہشت گردی نہ صرف بھارت بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ Japan, it was a very fruitful discussion. We had hectic consultations with state agencies, former Prime Minister, the Foreign Minister, several members of the Parliament, Indo-Japan group, section of the think tank, the academic community, the media, and our own community. In fact, it was a golden opportunity for the delegation to impart the view of our nation with regard to Operation Sindoor and also our fight against terror. We feel that we could convey it in an effective manner so that Japan concurs with the concerns of India. And we also told them that in an era when terrorism cannot be fought in a unilateral way, everyone needs to hold their hands to fight terror, because overall terror will affect and dent the progress and advancement of nations, and it cannot be limited to one country alone. So we also shared the evidences and other aspects of terror from Pakistan, and we feel that discussions in Japan was very fruitful. Now our delegation has reached South Korea. The importance of South Korea is that they are part of the Security Council. They are one of the members of it. And many a time these issues come in the floor of the Security Council, and we feel that South Korea needs to be sensitized about the concerns. And another aspect is that South Korea is having a huge trade relationship with India. There are investments in automobile sector, IT sector, and also semiconductor sectors, whereas Pakistan share of trade is hardly 1/20th of India. So we also feel that it is a bounden duty of South Korea to support India in this hour of crisis. And neutrality is not the policy when we fight terror. We need to take the sides on that. The sides of India needs to be taken by South Korea. And in South Korea also, despite South Korea is going through an election campaign for the presidency, still we are having so many meetings with the government agencies, ministers, and parliamentarians, think tanks, and also the diaspora here. We feel that these two countries would immensely contribute the cause of India in fighting the terror. कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी लीडर रामचंद्र के पहलगाम हमले के मुतासरीन ख़ानदानों पर दिए गए तौहीन-आमेज़ बयान को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरों में शुहदाए फ़ौज की तौहीन करने की दौड़ लगी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने याद दिलाया कि इससे पहले विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी के ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी। अदालतों ने सरजनिश की, FIR दर्ज हुई, लेकिन बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा के लीडर ने शुहदा के ख़ानदानों की तौहीन की है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। बीजेपी को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। जांगड़ा ने जिस तरीके का बयान दिया है, कैसे देखते हैं आप? बहुत ही शर्मनाक है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ लगी हुई है सेना को अपमानित करने की, और जो पहलगाम में शहीद हुए हमारे निर्दोष उनको अपमानित करने की। पहले भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री ने कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, FIR हुआ। आज तक भाजपा ने उन्हें न तो निष्कासित किया, न तो मंत्रिमंडल से हटाया। उप मुख्यमंत्री ने अपमानित किया, ये कहा कि
प्रधानमंत्री के चरणों में पड़ी है सेना। और अब हरियाणा के एक सांसद ने जिस तरह से वहां शहीद हुई जो शहीद हुए लोग हैं उनके परिवार की महिलाओं के बारे में, जिनके सुहाग उजड़ गए उन महिलाओं के बारे में जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, मुझे तो प्रधानमंत्री जी से पूछना है कि ये कौन सी भाषा आपके नेतागण बोल रहे हैं। सेना का अपमान, शहीद जो मासूम लोग हुए हैं उनके परिवारों का अपमान बहुत शर्मनाक है। होड़ लगी है भाजपा में लोगों को अपमानित करने की। रियासत तेलंगाना हज कमेटी का 23वां और इसी तरीके से 24वां आज़मीन हज का काफ़िला आज सुबह और इसी तरह दोपहर नापल्ली हज हाउस से रवाना हुआ। इस तकरीब में खुसरो पाशा अफजल बियाबानी सदर नशीन हज कमेटी रियासत तेलंगाना ने आज़मीन हज को मुखातब करते हुए सफ़र हज के दौरान हाजी साहिबान को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने की बात कही और इसी के साथ साथ इस मौके पर ज़ोहर के मौके पर हुए रवाना हाज़मीन हज के काफ़िले से वज़ीर पूनम प्रभाकर ने शिरकत करते हुए दिली मुबारकबादी दी हुज्जाज को और इसी तरीके से उन्होंने तमामी हुज्जाज से गुजारिश की कि वो मुल्क और रियासत के अमन और सलामती और तरक्की के लिए इस मुक़द्दस सफ़र के दौरान दुआ कर दें। हाजी हज को जाने वाले सब लोग का आपका यात्रा 40 दिन का अच्छा सफल हो और सब लोग आपका खुद का दुआ मांग के और तेलंगाना तरक्की का दुआ भी मांग के आइए। तेलंगाना सरकार आज सबकी हिफाजत, सबकी मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जो भी हमारा खुसरो पाशा जी आज मुझे बुलाया, मैं तेलंगाना मिनिस्टर के हैसियत पे सब लोगों को मैं सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि जिंदगी में सबको मौका नहीं मिलता जो हाजी बन के हज यात्रा करने का, जो अल्लाह का दुआ से आप लोगों को मौका मिला। तो ये 40 दिन दुनिया में आप अल्लाह से दुआ मांगते ही 40 दिन मक्का मदीना दोनों देख के आने के बाद भी जो सबकी भला के लिए दिल में जितने भी पहले हम हज यात्री बनने से पहले दिल की बात क्या, अब फैमिली का और खुद का सोच का बात अलग रहे, मगर हज यात्री जाके आने के बाद आप समाज के लिए और अपने बगल में रहे जितने भी इंसानियत के साथ सबका अच्छा भला करने के लिए आपको ये दुआ मिलेगा जरूर। अल्लाह यही चाहता है। तो मैं सब लोगों से ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, क्योंकि आप भी अभी ट्रैवल करने वाला है। तो आपको यही बात तेलंगाना सरकार से फिर एक बार मैसेज यही है कि आप सब लोगों का यात्रा सफल रहे और अल्लाह का दुआ सब लोगों के ऊपर रहे। आप लोग भी तेलंगाना हरकत के लिए, तेलंगाना तरक्की के लिए, तेलंगाना जनता की सब अच्छा पानी बारिश गिरे, किसान अच्छा रहे, सब के लिए दुआ मांगने के लिए हमारा तरफ से फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट करते हुए सबको नमस्कार, सलाम अलैकुम। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह का बयान। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फ़ौज ने बहादुरी दिखाई, 9 दहशतगर्द अड्डे तबाह किए। अगर बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटाया जा सकता था और बीजेपी को वापस लिया जा सकता था, पीओके को वापस लिया जा सकता था, तो वो सुनहरा मौका गंवा दिया गया और इसकी वाहिद वजह नरेंद्र मोदी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने वज़ीर आज़म मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय अफवाज ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 9 दहशतगर्द अड्डों को तबाह किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत के पास एक सुनहरी मौका था कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटा दिया जाए और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर पीओके को वापस ले लिया जाए, लेकिन ये तारीख़ी मौका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नाकामी की वजह से ज़ाय हुआ। संजय सिंह के मुताबिक हमारी अफवाज ने अपना काम किया है, मगर सियासी क़ियादत ने कमज़ोरी दिखाई। देखिए, निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर की जो शुरुआत हुई और भारतीय सेना ने जिस बहादुरी का परिचय दिया और 9 पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, 21 ठिकानों की जानकारी उनके पास थी। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटाया जा सकता था, पीओके पे कब्जा किया जा सकता था और पीओके हमारा है, हमने संसद के अंदर उसके लिए प्रस्ताव पारित किया है। ये सुनहरा मौका अगर भारत ने गंवाया तो किसकी वजह से गंवाया?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से गंवाया। आज वो 4 खूंखार आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, वो कैसे बचे हुए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। वजह इसके प्रधानमंत्री जी सिंदूर के सौदागर बन गए हैं और वो सिंदूर के नाम पे मार्केटिंग कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, घूम घूम के पूरे देश में वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री की जो कोशिश है वो इस देश की जनता समझ रही है और उनकी नसों में सिंदूर पता नहीं बह रहा है कि नहीं बह रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन नौटंकी जरूर बह रही है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट राज कुमार ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना के मामलात पर शहरियों को तशवीश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड की नई शक्ल JN-1 काफ़ी हल्की है और इसकी शिद्दत में काफ़ी कमी हो गई है। शहरियों ने पहले ही से मुदाफ़ती निज़ाम को तरजीह दी है, इसलिए उन्हें खौफज़दा नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा है कि अस्पताल के मुतालिक शोबों को चौकस कर दिया गया है, जो सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अस्पताल में दरकार नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, मतलूबा दवाएं तैयार हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि महकमे सेहत की तरफ से अस्पताल को हुनूस कोई हिदायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मुतासर अफराद को मकान में ही अलग थलग रहते हुए इलाज करवाना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल छींक या खांसी पर दस्ती मुंह पर रखनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मनसूबाबंदी के साथ डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक इलाज काफ़ी है। अगर शदीद मामलात जैसे सांस लेने में दुश्वारी, ऑक्सीजन में कमी हो तो मामलात को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। ऐसे मुतासिरीन को ही अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत है। ज़िला संगारेड्डी के ज़हीराबाद के ईदगाह मीर आलम में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ का इजलास आम मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की। और वहीं दूसरी जानिब इस जलसे से मुअज़्ज़ज़ मेहमानान बिलख़ुसूस हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, इसी तरह मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी अक़िल अलमारूफ जाफ़र पाशा साहब और दीगर उलमा व मशाइख़ीन ने खिताब किया। जबकि सियासी लीडरों में मोहम्मद अली शब्बीर तेलंगाना स्टेट एडवाइज़र और इसी तरीके से जनाब रहीम खान बिदर MLA, सुरेश कुमार शटकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी ज़हीराबाद और दीगर ज़िम्मेदारों ने शिरकत की और इस जलसे से खिताब किया। वाज़ेह रहे कि इजलास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुनक़्क़िद किया गया था, जिसके कन्वीनर मौलाना गयास अहमद रशादी थे। करें और ये चाहते हैं कि हम इनके इशारे पर अमल करें और इनके इशारे पर चले, जबकि हमको दस्तूर में जो हक हासिल है वो दस्तूर के हक को भी ये छीनना चाहते हैं। इसलिए आप हजरात के पास आने का मकसद यही है कि आप भी अब जाग जाए, और अब आपको जागना भी पड़ेगा और जागना ही है। क्यों? जब तक कि आप नहीं जागेंगे ये हुकूमतें ऐसे कवानीन बनाते रहेगी। कभी हमारी शरीयत में मुदाखलत के तरीक़े ढूंढती है। ये हुकूमत को सिर्फ मुसलमानों की दिल आज़ारी करना आता है, मुसलमानों को तकलीफ कैसे पहुंचाना है ये हमेशा इनके प्रोग्रामों में रहता है। और कुछ हमारे सफ़ों में रहने वाले मुनाफिक उनका साथ देते हैं। किसी शायर ने अच्छा कहा था कि ये कहते हैं कि हमको ये जो हालात हो रहे हैं सुनते हैं कि अपने ही थे घर लूटने वाले, अच्छा हुआ कि मुनाफिक हमारे साथ नहीं है। आज हमारे मुनाफिकों का ये हाल हो गया है कि जा जाकर उनको खुश करने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं। आप हजरात आपके ज़हीराबाद के अतराफ में, ज़हीराबाद में जो ज़मीनात और जो प्रॉपर्टीज है उसकी न सिर्फ हिफाजत के लिए आगे बढ़े, बल्कि जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको आवाज़ दे और उस आवाज़ पर आपको लब्बैक कहना पड़े तो आप आगे आए, पीछे ना रहे। इंशाअल्लाह तो बोलो यारो, गूंगे बन के बैठे हुए सब जने,
सर्दी से ज्यादा हो रही क्या? हाँ, हम लोगों को अगर यही कोई दूसरा जलसा रहना था, इतने लोग आते थे, बारिश हो कुछ भी हो, बहरहाल जमा होते थे, मगर अफसोस हमारे को अभी भी बेदार होने का वक्त नहीं आया। हम अभी भी होशियार होने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आपको ये तय कर लेना है कि हमको अपने वतन के साथ मिलकर इस वक्त की जो बिल आई है इसको हम रिजेक्ट करते हैं और ये हुकूमत को वार्निंग देते हैं कि ऐसे बिलों से वो एराज करे, वरना मुसलमान कभी इनको माफ नहीं करेगा। आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों पर जो चाहे जुल्म कर लिया और मुसलमान सहता रहेगा। एक हद होती है सहने की, खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़प है दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है। मैं आप हजरात की तरफ यही दो बातें अर्ज करूंगा कि आप अपने जहीराबाद के नौजवान और जहीराबाद के जिम्मेदार, कल भी हमने जो प्रोटेस्ट रखा है और ह्यूमन चैन का जो प्रोटेस्ट है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ना? हाँ, अब मालूम हो रहा कि आप लोग जिंदा कौम हैं, वरना वो जिधर से आया मैं वो रास्ता पूरा वीरान है। कौन से रास्ते से आया मालूम है ना? कब्रिस्तान में से आया मैं। तो वहाँ आराम कर रहे हैं आप, यहाँ बैठे हुए, फर्क इतना ही है। कल हमारी भी वहीं जाने वाली है सवारी। मेरे अजीज दोस्तों, आज आपको मुझे ज़रूरत है कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहकामात के तहत काम करें और मैं जहीराबाद के जिम्मेदाराने जलसा को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन जलसा मुनक्किद किया। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जो सैकड़ों साल पहले की, आप यहाँ के करीब बिदर चले जाइए, बिदर की जामे मस्जिद है, बहुत ही कदीम मस्जिद है। आप जानते हैं, फर्ज कीजिए कि अगर इसी कब्रिस्तान और ईदगाह के बारे में कहा जाए कि आप इसके डॉक्यूमेंट दीजिए, तो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ लोगों के पास क्या उसके दस्तावेज मौजूद हैं। आप चंद कदम आगे बढ़िए, अपनी अजीम शान मक्का मस्जिद को देखिए, जो 300 साल से ज़्यादा अरसे से ज़मीन के सीने पर पूरे इज्जत और वक़ार के साथ खड़ी हुई है। आज अगर आपके पास हुकूमत का आदमी आए कि आप मस्जिद में उसी वक्त नमाज पढ़ सकते हैं जब आप हमको डॉक्यूमेंट दिखाएं कि ये ज़मीन किसने वक्फ किया है, किसने इसको रजिस्ट्रेशन इसका कब हुआ है, वरना आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो आप सोचिए क्या उसके डॉक्यूमेंट आप ला सकते हैं? हमारे शिया भाइयों के कितने इमाम बाड़े हैं, लखनऊ में बड़े बड़े इमाम बाड़े हैं, सैकड़ों साल पहले के हैं। हैदराबाद में कितने आशूर खाने हैं। क्या अगर आज कोई उनके दस्तावेज मांगे तो हम दस्तावेज दे सकते हैं? अगर दिल्ली के जामे मस्जिद के बारे में आपसे कहा जाए कि आप पहले उसका डॉक्यूमेंट पेश कीजिए, वरना यह मस्जिद गवर्नमेंट के हवाले कीजिए, क्या आप डॉक्यूमेंट पेश कर सकेंगे? इन तमाम चीज़ों को यूज़ करने की बिना पर, इस्तेमाल की बिना पर मस्जिद माना जाता है। हमारे मुल्क का पहले का कानून भी है 2013 का, और अदालतों के फैसले भी हैं कि जो चीज़ एक तवील ज़माने से किसी ख़ास मजहबी मकसद के लिए इस्तेमाल होती आ रही हो, उनको उसी मकसद की चीज़ समझा जाएगा। यह हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी है। आज अगर कोई, ये जो हमारे करीब बहुत बड़ा मंदिर है तिरुपति का, अगर हम हिंदू भाइयों से कहें कि आप उसका रजिस्ट्रेशन दिखाइए, किसने इसको दान किया था, तभी आपको इसको पूजा की इजाज़त होगी। सोचिए, लोग पेश कर सकेंगे उसका सबूत? ये एक मुसल्लमा बात है। मैं तो कहता हूँ कि मस्जिद और कब्रिस्तान को छोड़ दीजिए। आपका कोई घर है जो आप पुश्त से इस्तेमाल करते आए हैं, आबा और अजदाद के वक्त से,
दादा परदादा उनके दादा, आपको मालूम नहीं होता है कि ये ज़मीन किससे ख़रीदी गई थी, किसने रजिस्ट्री किया था। पहले ज़माने में ज़बानी ख़रीद फ़रोख्त होती थी। आज अगर कोई आप पर चढ़ दौड़े कि जब तक आप इसका कागज़ नहीं पेश करेंगे इस मकान में आपको कदम रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो आप सोचिए कितनी मुश्किलात पैदा होंगी। ये जो नया कानून आया है इसके रूप से वक्फ बाय यूज़र को नहीं माना जाएगा। जब तक किसी वक्फ के लिए डॉक्यूमेंट नहीं पेश किए जाएंगे, कागजी सबूत पेश नहीं किया जाएगा, चाहे वो मुद्दतों से मस्जिद, मदरसे, ईदगाह, कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल होता आया हो, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा और गवर्नमेंट को उसको अपनी कस्टडी में लेने का इख्तियार होगा। आप गौर कीजिए, अगर ये कानून बदला नहीं गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी कदीम इमारतें, हमारे कब्रिस्तान, हमारी खानकाहें, हमारी दरगाहें, क्या ये आज महफूज रह सकेंगी? और क्या गवर्नमेंट के लिए उस पर ज़बरदस्ती कब्जे का मौका हासिल नहीं हो जाएगा? दूसरा कायदा, इस कानून में ये बात कही गई है कि जो चीज़ें आसार कदीमा में आ जाए। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। पाकिस्तान अपने मसाइल में घिरा हुआ है और मुसलसल नाकामियों का शिकार। बहरीन में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का खिताब। भारत की मुख्तलिफ रियासतों की मुख्तलिफ नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने जारी की नोटिस। संजय झा की क़ियादत वाली ऑल इंडिया पार्टी वफ्द की सिविल कोरिया में भारतीय सफ़ीर से मुलाकात। पाकिस्तान न सिर्फ भारत बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। रियासत तेलंगाना हज कमेटी से आज भी हुज्जाज के काफ़िले रवाना। पूनम प्रभाकर की शिरकत। ज़हीराबाद में जलसा वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ, उलमा, सियासी और दीगर कायदीन ने की शिरकत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।